चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hello and welcome. You watching This is Exclusive with me, Shavan Sen. I'm coming to you live from the national capital. Ladies and gentlemen, dreams of scores of students have been completely shattered because of the incompetence of one particular agency. In fact, NEET aspirants today are out on the streets demanding that retest should be done and those who are responsible should be punished. Tonight on This is Exclusive, we not only speak to the parents of NEET aspirants, but those NEET aspirants who are on the streets demanding that there should be an impartial probe that should be carried out. But before we get into the details of the story that we have been tracking very closely, up first, these are the headlines we are tracking at this hour. Massive fire in Kuwait building, 40 Indians killed. External Affairs Minister Jaishankar expresses grief. First Riyasi, then Kathua and Doda. 3 terror attacks in 72 hours in Jammu. Forces go all out to avenge martyrdom of braves. When there are two governments, there's a government in Pakistan. I think they are wanting to have peaceful atmosphere with us. Let's open the door to them. Pak terror bleeds India, but Farooq Abdullah says India and Pakistan must sit and talk. Bhopal, Delhi, Surat, Kanpur, Tamil Nadu. Nationwide protest over NEET scam. Future of 23 lakh students at stake. It seems all's not well between Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee as the latter announces a break from politics. Dreams of young Indians have been completely shattered. Ladies and gentlemen, students that you see behind me who should have been in colleges hoping to be able to fulfill their dreams are now out on the streets. Through the day, as we have been reporting from the national capital, from Jantar Mantar, where parents and students have been demanding that there should be a retest. In fact, it turns out that they've not even been allowed to put across their grievances as far as the national testing agency is concerned. Let me also once again go back to them. In fact, they were all protesting at Jantar Mantar since morning, but post 5 o'clock, even the police have now stopped them from carrying out their protest, a peaceful protest that they were carrying out. सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप लोग के लिए कितना कठिन है, क्योंकि जिस तरह से आज इस धूप में आप लोग सब बैठे थे ये डिमांड करने के लिए कि रीनेट हो, और कई ऐसे लोग हैं जो आज आ नहीं पाए, उनके लिए भी आज आप उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। तो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि हम लोग कभी धूप में निकले नहीं थे, दिन रात बस घर पर बैठ के पढ़ाई करते हैं और आज हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। मतलब हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा भी करना पड़ेगा कि हमको अपने हक के लिए रोड पे उतरना पड़ जाएगा। जब आप ये सुनते हैं, जब एनटीए से जवाब मांग रहे थे, तब आपको ये कह दिया गया कि इसमें कोई बेबुनियाद है, हाँ। और जितने भी एलिगेशंस लगे उस पे कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, इनसे बोला गया कि 1600 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क दिया है, उन सेंटर्स पे ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराए गए जहाँ पे टाइम की कमी पड़ी, जबकि आज ही हरियाणा के झज्जर की प्रिंसिपल ने बोला है कि हमारे यहाँ कोई भी टाइम की कमी पड़ी नहीं थी।
हमारा बल्कि 10 मिनट पहले ही पेपर बच्चों को हाथ में थमा दिया गया था और बिल्कुल टाइम पे पेपर लिया गया, फिर भी वहाँ पे ग्रेस मार्क दिया गया। वहाँ की प्रिंसिपल खुद इस बात को बोल रही है और एनटीए आज अपने नोटिस में कहता है कि हमने जो है कैंडिडेट्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रोटेक्टिवली प्रोवाइड टू देम, एनटीए रिमेन्स कमिटेड टू फुल्ली। मतलब एनटीए पूरी तरीके से बात कर रहा है बच्चों से, लेकिन दैनिक भास्कर कह रहा है कि नीट के पेपर लीक पे एनटीए ने ना तो मूल प्रश्न पत्र भेजा, न संदिग्ध 11 परीक्षार्थियों की जानकारी दी। मतलब उनसे उन्होंने कहा कि हम पूरा कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर कह रहा है खुद कि हमने ना एनटीए से पेपर मांगा तो उन्होंने ना हमको पेपर दिया, ना ही उन 11 परीक्षार्थियों की डिटेल दी है। और एनटीए कह रहा है कि हमने पूरा मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जहाँ पे पेपर लीक हुआ है पटना में, वहाँ जाएं और वहाँ बात पता करें कि क्या हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो 12 लोग जो जिनको मतलब जेल हुई है वो आज बेल मांगने जब गए हैं कोर्ट में तो उनसे कह दिया गया कि आपको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि आप पेपर लीक मामले से पेपर लीक कराया आप लोगों ने। जो ये कह रहे थे कि पेपर लीक अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए से ये सवाल रिपब्लिक टीवी ने भी कई बार की कि आखिरकार जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर इसे गंभीर तरीके से क्यों नहीं देखा जा रहा। जवाब अब तक कुछ नहीं है। आप लोग ने कोशिश की थी ये सवाल करने के लिए? सर अभी तक तो एनटीए वालों ने काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं। ऑलरेडी प्रूवन है ये पटना पुलिस से कि नीट पेपर जो है वो लीक हुआ है। आप कहते हैं कि कुछ चीज़ छुपाएं, क्या छुपाएं? सर उन्होंने काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारी OMRs जो हैं वो चेंज की गई हैं और काफ़ी स्टूडेंट जब सवाल पूछने जाते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपनी OMR की कॉपी लेने जाते हैं, जिनकी OMR नहीं आई है एनटीए ऑफिस पर जाते हैं कि हमारी OMR दीजिए। बच्चे को 3-3 घंटे तक बिठाते हैं। किसी को ये कहते हैं कि आपकी OMR जल गई है, किसी को कहते हैं कि आपकी OMR हमने ईमेल पर भेज दी है, बट बच्चे को वो ईमेल पर भी नहीं मिली। वहाँ पर 3 घंटे बच्चा बैठता है गर्मी में, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहे हैं बच्चे। ना ही एनटीए कोई ठीक से जवाब देता, ना ही हमारे क्वेश्चंस को ठीक से समझ के जवाब देना चाहता। वो अपनी बातों को सिर्फ छुपाना चाहता है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा क्योंकि आज आप पूरे दिन जंतर मंतर में थे। आप दोनों, आपके बेटे, आपके बच्चे खुद एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुँचे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब अब काउंसलिंग की समय आ गई तो सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि देश भर में जो लोग ये देख रहे हैं उनको अगर ये समझना हो कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठाए गए थे नीट के पूरे एग्ज़ाम के प्रोसीजर को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे। एक पिता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या है, हमारे जैसे लाखों परिवार आज हैं वो बड़े सख्त हैं और सुप्रीम कोर्ट से कल थे, आज हाई कोर्ट से भी, दिल्ली हाई कोर्ट से भी सख्त हैं। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी, यानी कि चोर जिस पर क्राइम का रिपोर्ट दर्ज किया है, हम लोग क्राइम बता रहे हैं, उसे सोच ही नहीं रहे हैं, उसे तो सीधा क्लियर करते हैं। अरे आप 24 लाख बच्चों के पेपर नहीं करवा सकते। कई ऐसे टेस्ट हैं जो 2-3 बार होते हैं। आर्मी का टेस्ट होता है, पहले फिजिकल हुआ, फिर इंट्रेंस हुआ, फिर थ्योरी होता है। तो ऐसे करके आपको मान लिया कि स्कैम नहीं हुआ। 2 मिनट समझिएगा मेरी बात, आप 600 के ऊपर वालों का पेपर दोबारा करवा दीजिए और किसी दूसरी संस्था से करवाइए, निश्चित 40,000 बच्चों का घपला निकलेगा। अगर 600 ऊपर मार्क वाला दोबारा टेस्ट दिलवा दिया जाए तो इसमें से 40,000 बच्चे फेल हो जाएंगे, 4-5 हज़ार तो देने नहीं आएंगे, ऐसी स्थितियाँ हो जाएंगी। लेकिन इनको पता नहीं क्यों पहुंचाने में हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा है कि क्या हुआ है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है जो बेल दे रहा है। और एक छोटा सा भी बता रहा हूँ, आज मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, आप ही लोगों ने बताया कि उन्होंने वो दिया अपना रिपोर्ट कार्ड एनटीए वालों ने, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे आ गए इसलिए ज़्यादा रिजल्ट हाई हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ इंडिया की तो आज आबादी पॉपुलर वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है, ओलंपिक के सारे पदक ले आए। क्योंकि सवाल जज्जर की हो रही थी, इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि हमारे संवाददाता वहाँ पे है। One of the key issues that have basically come up is the fact that at least 6 such centers where there have been malpractices that have been reported. In fact, Republic TV's reporting team reached one such center. There were 3 schools where we reached out to in Jhajjar. The questions that were asked to the school principal and the questions that were asked to the city coordinator, both of them have a different version to say. It all started with whether at all there has been a delay in beginning with the examination. Listen into what both of them had to say, which will give you a clear picture that someone essentially is lying, because the reality is this, as the students have been saying, that there has been an inordinate delay in beginning the examination on the very day it was scheduled.
VN Jhaji, so there were 3 schools in Jhajjar, Senior Century Public School, Vijay Senior Secondary School and हरदयाल Public School. राइट तो इन तीनों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसके अंदर हरदयाल पब्लिक स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है वो देर से हुआ है क्या? मुझे लगता है स्लाइटली देर से हुई है। कितने देर से हुआ है? पेपर के कंफ्यूजन के चलते थोड़ा देर से हुआ था। नहीं, कितना देर हुआ ये बताइए आप। वक्त कितना लगा था? 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा, कितने देर एक्स्ट्रा लगे? ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया गया था। नहीं थोड़ा लेट हुआ था वहाँ पे एग्जाम, ये सही बात। नहीं वीएन झा, आप सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कितने देर से एग्जाम्स हुए हैं। नहीं, एग्जाम तो थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन उन्होंने टाइम दिया या नहीं दिया एक्स्ट्रा। तो एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर आपको तो उनसे पूछना चाहिए ना कितने देर से आपने एग्जाम स्टार्ट किए। इतने बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है, आपने तो पूछना चाहिए था उनसे, प्रिंसिपल से स्कूल के, कि आपने कितने देर से एग्जाम्स स्टार्ट किए हैं। नहीं, कहा गया था कि सबको कि आप उनको टाइम दे दीजिए, इतना तो हमने कहा था। अब उन्होंने दिया या नहीं दिया इस चीज़ का हमें पता नहीं। मैंने स्कूल के हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की है, उन्होंने डिनाई किया है। अंशु यादव जो प्रिंसिपल हैं हरदयाल पब्लिक स्कूल की, उनका कहना है कि मैंने एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट किए। आप सिटी के नीट के कोऑर्डिनेटर हैं, आपका कहना है कि एग्ज़ाम देर से स्टार्ट हुआ। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कुछ लेट हुआ होगा क्योंकि 2 पेपर चला गया था तो लेट कुछ हुआ है। वीएन झा जी, कुछ लेट हुआ होगा का क्या मतलब होता है? लाखों बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है, आप कह रहे हैं कुछ लेट हुआ होगा? नहीं, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया एग्जैक्टली, इसीलिए हम नहीं कह सकते क्लियरली क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता हुआ है। नहीं, बीइंग अ सिटी कोऑर्डिनेटर, आप पूरे शहर के कोऑर्डिनेटर हैं नीट एग्जाम के, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कितना लेट से एग्जाम हुआ है। सर, ये 2 पेपर बट गया था, उसके चलते थोड़ी लेट हुई है उनके यहाँ। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी लेट हुई है, तो वो तो रिकॉर्डिंग में उनके यहाँ होगा ही। मुझे बताइए, आपने ये बात एनटीए को कम्युनिकेट की थी कि एग्जाम देर से स्टार्ट हुआ है? पेपर अलग गया था, मैंने एनटीए को इन्फॉर्म कर दिया था। आपने एनटीए को क्या इन्फॉर्म किया था? पेपर जो दूसरा गया था उसके लिए मैंने एनटीए को इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, क्या इन्फॉर्म किया था? पूरी बात कंप्लीट बताइए। सर, मैं कल रहूँगा, कल आएगा मैं बता दूंगा। वीएन झा जी, मुझे आपसे अभी मुलाकात करनी है, मैं आपके स्कूल पे बैठा हूँ। ज़रा मुझे क्लियरली बताइए कि क्या। तो हूँ नहीं है आज, तो मैं हूँ नहीं अभी। बट यू विल हैव टू आंसर, बिकॉज यहाँ लाखों बच्चों का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है। तो आपको तो ये बात बतानी पड़ेगी ना कि कब हुआ, कितने देर से हुआ, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज थी। यहाँ तो फ्यूचर बच्चों का स्टेक पे है ना। लाखों बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब जो इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में क्या बता। लेकिन ये भी तो इन्फॉर्मेशन आप गलत दे रहे हैं ना, या तो आप गलत दे रहे हैं या फिर जो दूसरे स्कूल है उसके प्रिंसिपल गलत बता रही हैं। नहीं, पेपर कुछ लेट हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो जो कह रही हूँ कि वही सही है। आई नीड द एग्जैक्ट टाइम, कितना देर हुआ ये नहीं मुझे पता है एग्जैक्टली, वही बता सकती है। बट यू विल हैव टू आंसर इट बिकॉज यू आर द सिटी कोऑर्डिनेटर, यू नीड टू आंसर इट। नहीं, वो तो सीएस बता पाएंगे, सीएस वही है, वही बता सकते। That she is the center coordinator. I simply understand. Jhaji, I simply understand. She is the school coordinator, and you are the city coordinator. You are in the higher designation, so you need to answer it. I've already asked her. She simply told me in an exclusive interview that there was no delay in the exam. But you are saying, being a city coordinator, you are saying that there was a delay in the exam. How much was the delay? We wanted to know. वो कह रही हैं, अगर वो कह रही हैं तब नहीं हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली वही बता सकती है। अरे ऐसे नहीं होता है ना कि वो कह रही हैं तो नहीं हुआ होगा, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। How much was the delay? उनकी रिकॉर्डिंग में होगा सारी चीज़ें। How much was the delay? I know the exact timings. That I cannot say. But you will have to answer it. I do not. Hello? Before I also bring in my colleague Akhil, who's joining us from Jhajjar, that was one center where there was several questions were being raised. Let me just quickly also get in a voice from here because they have been on the streets hoping that there would be some changes. आपसे एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप भी आज दोपहर को जब ये बात उठा रहे थे कि लगातार आप लोग ने कोशिश की इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, कई सारे छात्र ऐसे हैं कि यहाँ दिल्ली तक पहुँच नहीं पाए। क्या अब तक कोई भी जवाब मिला जिससे आप लोग को संतुष्टि हुआ है? नहीं सर, अभी कोई जवाब नहीं मिल पाया कि हमें जो संतुष्टि हो जाए। कारण रीज़न ये है
कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी काउंसलिंग को नहीं रोक रहा है। इससे साबित हो रहा है कि हमारी कहीं हार ना हो जाए। सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि रीटेस्ट की अगर बात करें, रीटेस्ट को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक तरह से अगर रीटेस्ट हो जाता है, इस पूरे मुश्किल और ये पूरे चीज़ों का समाधान हो सकता है? सर ऐसा है ना, अब रिवैल्यूएशन से काम चलता तो रिवैल्यूएशन के कहते भी, अब रिवैल्यूएशन से काम चलेगा नहीं ना। आप कह रहे हो रिवैल्यूएशन सिर्फ 1563 बच्चों का करेंगे, रैंक आ रही है 30,000 का गैप आ रहा है, 1563 से 30,000 का गैप नहीं आता ना, यानी कि गैप बहुत बड़े हैं तुम्हारे जो तुम छुपाना चाह रहे हो। अब हम रिवॉल्यूशन की डिमांड करें भी तो किस बेसिस पे करें? अगर 1500 या 1000 का गैप आ रहा होता तो हम समझते हैं, 2000 का गैप आ रहा हो तो समझते हैं। 30,000 का रिवॉल्यूशन से फ़ायदा नहीं है ना। पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है तो हमें रीनीट ही चाहिए। हमारे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। पूरे टेस्ट की बात करें, हाँ। और जो ये 1600 या कुछ करीबन कुछ लोगों के कुछ स्टूडेंट्स की बात करें जिसे ग्रेस मार्क दिया गया है, क्या आपको लगता है कि पूरे चीज़ों को स्क्रैप करके वापस करना चाहिए, इसी से समाधान हो सकता है? यस, बिकॉज दिक्कत क्या है कि अगर ग्रेस मार्क दे रखे हो आप 1600 बच्चों को दे रखे हैं, अगर 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया तो रैंक सिर्फ 2000 या 2500 तक बढ़ जाती है। तो दिखता है कि हाँ बढ़ सकती है इतनी रैंक, लेकिन 25 से 30,000 रैंक बढ़ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये पेपर लीक चक्कर से हुआ है, क्योंकि 1600 बच्चों को तो आप लोगों ने हमसे आगे निकाल दिया है। सिर्फ ग्रेस मार्क की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम पेपर लीक की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेपर लीक है। पेपर लीक जब भी होता है तभी रैंक में इतने इन्फ्लेशन आता है, वरना वैसे ग्रेस मार्क्स 1500 बच्चों को दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक का हमारा रैंक इन्फ्लेशन आता है ग्रेस मार्क्स की वजह से। मैक्सिमाइज लेके कौन जिम्मेदार है सर इस चीज़ के लिए? एनटीए ही जिम्मेदार है और उससे जुड़े जितने लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। There you've heard the students here protesting in the national capital. It turns out, I'm being told that tomorrow more number of students will be gathering here in the national capital as they raise their voice against the system which they say have been completely brutal. Let me just quickly go across to my colleague Akil, who's also joining us on this broadcast. Akil, just a quick question before I let you go. With regards to the problem in Jhajjar itself, are we really looking at a situation where there has been a cover-up by the authorities? See the entire situation, we just questioned Mr. B.N. Jha, and when we asked him direct question, at what time did you get the booklet from banks? Because if you see, Shravan, there are two things. First one is that the booklet which was supposed to be released from SBI, and there was another condition, during the emergency conditions, the booklet was supposed to be released from Canara Bank. I would like to request my Vijay to pan and show you the visual of this very bank from where the booklets were released. And Mr. B.N. Jha, who is the city coordinator, he came in the morning around 10 a.m. and he got the booklet released from this very place. And he dispersed two different booklets. One booklet which was supposed to be released from SBI, which was supposed to be used by the students. And the second booklet, which was supposed to be used during the emergency conditions only, that was originally used by the students. So it remains in the hanging balance, and we need to confront the NTA officials. I tried to speak to the sub-senior officials during the daytime, to the NTA official, but they were numb. And when we tried to speak to this very Canara Bank official, when I came over here during the daytime, and I asked them this direct question, why did you release those booklets which were kept only for the emergency timings? They didn't answer my question. They are saying that you need to take this question forward to the city coordinator. City coordinator is the authorized person. They have come over here. That's why we released that booklet to him. So NTA must need to come out clean on this, Shravan, that why NTA observers who were there at the center, because if you see, there were 6 observers at each center. When we try to reach out to the NTA observers, they are still numb on this topic. They are saying that the city coordinators need to answer it. But when we spoke to the city coordinator, he is saying that the principals of those 3 schools need to answer it. So it remains need to. There must be some clarity on it, that who is the responsible person in this case, Shravan. Yes. Well, in fact, this was just day one of the protests that are taking place in the national capital. The students have been saying that from far-flung areas, more people are expected to come in tomorrow at Jantar Mantar as the protest is only intensifying, hoping that there would be some sort of a response coming in from the NTA. Thank you very much for watching. This is Exclusive. We continue with our campaign, standing shoulder to shoulder with the students who have been suffering because of the mismanagement of NTA.